there's some technical problem going on, Mataji. Let me start the class on my own, and meanwhile, I'll fix up with the technical issue. So, as you all are aware that we have got the subject of 1.1 Updeshamrit, which states that Vacho Vegam Manasah Krodha Vegam Jihva Vegam Udaropas Vegam एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वी शिष्या. Is it visible to you, all of you? Is the screen visible to all of you? No, Mataji. No, it's still not visible. Should I share the screen? Okay, now let me continue with my lecture. This is the first verse of Updeshamrit, which speaks about Vachu Vegam, Manasah Krodha Vegam, Jihva Vegam, Udaro Upastha Vegam. There are so many Vegam that we are talking about in this verse. Veg, I would like to ask all the participants that with this word vague, what do you understand? Literally, by this word vague, what do you deduce out of this word? Any answer from any of the participants? Any of the answers? Can anybody answer? Yeah, you can speak, Mataji. You can unmute yourself and tell me. Okay. माताजी वेगम का मतलब अर्ज होता है किसी चीज को करने की इच्छा. Ichha. We say Ichha means desire. There can be umpteen number of desire which comes to our mind. One can think of the desire of visiting 7 wonders of the world. We can have the desire to visit one of our friend's house or to enjoy or go to any kind of festival. There could be different kind of desires which comes to our mind. But out of all the desire, which is the most prominent one, which gears our mind just like a madman, and which desires instant satisfaction or sense gratification to be done, which desire which demands instant action from your side by the usage of your senses and mind and whatsoever quality you have got, that needs to be satisfied as soon as possible. So the desires which demands our urgent attention, which sounds very urgent and which sounds that need to be somehow or the other, that needs to be somehow or the other satisfied, which requires, even if requires, which becomes very derogatory for us, then also we go and get it satisfied. Such kind of desires sometimes even looks very out of our system also and out of our control. This seems very involuntarily happening in our system and changing the direction of our life too. Great example is that the 6 main desires that we can see is Vacho Vegam, Manasah Krodha Vegam, just for the sense of system and syntax. Sri Rup Goswami has mixed 2 words, Manasah and Krodh, but Manasah Vegam and Krodha Vegam, these 3 things. And then there is Jihva Upastha Vegam. So in one way, in one line, first we will talk about the first 3 things, Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, and then the other 3 things, Jihva Vegam, Uttara Upastha Vegam. First 3 things are related
to sham. Sham means the controlling the mind, and the other 3 points are related to dam, that is related to our senses and our bodies. Whenever we talk about absolute realization, there is certain process given in different kind of system by which we can realize the absolute. And in devotional service, our Sadacharyas have given a particular regulative principles by which we can very well attain the realization of the absolute truth, that is Lord Sri Krishna. But how is it going to happen? As the verse says, Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Deva Vegam Uttaro Upastha Vegam Etani Vegani Yo Vishaheta Dhira Sarvam Apimam Prithvim Cha Shishyat. It is talking about anybody. If he is able to control the demands of his words, the demands of his speech, the demands of his mind, the demands of his anger. After that, three other demands, that is the demands of his eating, then belly, udar, upastha vegam, then his genitals. All these three demands, if he is able to control all these total in totality 6 demands, then he becomes eligible to control the to not only control but become the guru of the whole world. This this demands if one is able to forego and control the urges. But why is it so important and why are we discussing this so thoroughly in this special class? Because these urges, the three types of urges of the body, urges of the mind, and urges of the speech, is not very easy to control. It needs a special attention, it needs a special regulative principles and exercises to be done by the seeker so that he becomes able to control these urges. And that is also one of the preliminary exercises that being a seeker of Krishna consciousness, we need to practice and attain the Supreme Krishna. We all know that we are contaminated. We are contaminated in one way or the other. But, and all these regulative principles which are told to us, they are meant to get a soul out of its contaminated state to the state of purity. Because of the contamination, we have fallen into this material world. But if somehow or the other we get the opportunity to attain the state of purity, then there is a chance that we will be able to revive our original self of pure consciousness. Mataji, is the screen now visible to everyone of you? Yes, Master. It is. Okay, great. There was some technical problem. I'm so sorry for that, but somehow or the other it got connected. Now let me start with the screen. You can see a sober person who can tolerate the urge of to speak, the mind's demands, the actions of the anger and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make disciple all over the world. This was the text. But there is one problem, that what is it, as I was talking about, that there is one thing which we are not able to do. One is not able to control these urges. Urges means urgent demand of satisfaction, which gives us urgency, a sense of urgency that we need to satisfy this demand somehow or the other. But why does it happen again and again? Why does a person feel such kind of captivation from these urges? And what is the real way to get out of that? The whole thing starts with the understanding of the real atonement. Atonement means that whatsoever these urges are the main cause of our sinful activities. Whatsoever sinful activities a soul or a living being gets into, it is because of these urges. Suppose a person who eats too much, he starts suffering from different kind of diseases.
a person who is not able to control his mind, and he gets into different kind of illicit sex or different kind of activities which are quite derogatory for his peaceful life. So this all, whatsoever bad thing which you see around in your life, this is all because of the uncontrolled senses and the mind, which is not directed in the for doing the right thing. Sri Parikshit Maharaj in Srimad Bhagavatam, looking after hearing the results of the sinful activities which a living being is supposed to suffer terribly, and he heard about the hellish planets and the way the living entities are suffering there. Then he asked Sri Shukdev Maharaj that what is the reason of these sinful activities. Sri Shukdev Maharaj told that the living entity is not able to control his mind and senses and these urges. That's why he has to suffer one time and the again. Then, out of a great compassion, Sri Parikshit Maharaj asked about that, is there some way out that he could stop this sinful activity? Then Sri Shukdev Maharaj explained that there should be a process of atonement. Atonement means प्रायश्चित. हम अगर कोई गलत काम करें तो हम उसका प्रायश्चित करें तो आपको उसका फल उतना नहीं भुगतना पड़ेगा जितना कि होता है. तो प्रायश्चित कितने तरीकों से हो सकता है. जैसे अगर कोई चोर है, उसको पता है कि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन तो भी वो चोरी करता है. What is the problem? Where is the problem? The problem is in the heart. That every time he knows that he is going to suffer, then also he is not able to control that. So we'll talk little about the process of atonement. Just now I have told you about he is the Sri Shukdev Goswami, and Parikshit Maharaj is asking him that why do people undergo attainment if they cannot control their senses? He had seen, being a king and a ruler, he had seen that like a thief, he knows that he is going to face great, very bad consequences. Then also, he keeps on doing sinful activity. He keeps on cheating other people. Then why does it happen again and again? Every time police comes and catches him, and every time, whenever he gets free, he again goes and cheats other people. Then why does it happen again and again? Then explaining this, he explains that atonement means prashit, amends or reparation made for an injury or wrong thing. This is just only atoning the sin or wrongdoing. Suppose there is a thief. Whatsoever consequences he has to face, that is only the consequences which is imposed by the ruler for his cheating propensity. That is not the real atonement. And the sinful activity is given by the body, the mind, and the speech. These are the three gates which indulge us in different kind of sinful activities. That's why when Ajamil was dying, three Yamraj Doots came because he performed sinful activity through his body, mind, and his speech. That's why three Yamdoots arrested Ajamil to take him to for punishment. What does actually happen? The working senses are superior to the dull matter, and the mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he means the soul, is even higher than the intelligence. It is written in Bhagavad Gita, but the problem here is that we are forcefully dragged by our mind and senses. This soul is forcefully dragged by his mind and senses, and he is not able to utilize his intelligence in controlling them. And he even misuses his body for performing the sinful activities to be performed by these mind and senses. How does it happen? Let's see the stages of sinful activity. That first of all, as we all know, that there is an impetus of for sinful sense enjoyment arises in our consciousness. We feel like that let me enjoy this thing. Intelligence comes into play. He discriminates the sense of enjoyment, but mind accepts and rejects the sense pleasure. But somehow or the other, out of these urges, when we get defeated by these urges, or then these sense enjoyment, the things of sense enjoyment get manifested in our life.
And a living soul who has got no sense control, then he feels himself in a position to be dragged in different directions, and he is not able to control his senses. Like, for example, I would like to explain you this through the pictures. You can see the deer who is very much addicted to listening good sound, musical sound. Then he is caught by the hunter, and the result, he loses his life. Then with the bee, he has got a great propensity for the smell, and he is caught inside the, look at this picture, he is caught inside the flower. Then there is the propensity for eating a fish which is expert in gratifying its tongue. But when it eats the bait offered by the fisherman, then it loses its life. And there is a demand for touch also for the body. If we talk about the body, then there is a demand for touch. Then we can see the example of elephant which is caught by the she elephant just out of a sexual desire. And for our great propensity for the eyes which wants to see different kind of beautiful pleasure giving scenes and movies or different things, then it is equivalent to the moth which is burnt into the fire. So we all can understand that if there is no mental control, and we get remain attached to the different kind of attachments, then what will happen if we remain attached to the different kind of attachments? Then out of regular contemplation on these objects, lust develops. And if that lust does not get this desire, great desire develops, and if that great desire doesn't get satisfied timely, then anger arises. And from anger, delusion arises. And from delusion, bewilderment arises. And we are not able, we lose our memory. And when the memory is bewildered, intelligence is completely lost, and when the intelligence is lost, one falls again into the material pool. You are not able to like look at the degradation of the person. There is a person who looks at the woman, he starts contemplating, he starts thinking, then he starts planning to unite with her. And ultimately he gets into the trap of material nature. You may think then if the mind is so bad, then why not a person should use his intelligence? There is a point that one can use his intelligence also. So let's check that how much intelligence do we have got. We can see from the example of a thief who perfectly very well knows that he may be arrested for his stealing. But even if he gets arrested, he knows that he will be arrested, then also he continues to steal. He is not able to utilize or bring his intelligence into action. There are different kind of people. First kind of people who experience is gathered by hearing. We hear about other people, and we deduce some kind of intelligence and think that okay, I will not I'll not get it happen in my life at least. Then there are few people who gather experience by seeing that okay, this is happening, this is the consequences that other person has to face, then I will not let it happen in my life. But one who is less intelligent gathers experience by seeing. Suppose if you are very intelligent, then just only by hearing, suppose a person, your mother says that don't go to that place, you will face bad consequences. Only by hearing, we will restrict ourselves that, okay, Ma has told not to go there, I will not go there. But the person who has got less intelligence, he will try, okay, Ma is saying that let's not go there, but let me try, let me go and see what happened there. After I see, after I witness, then only I will look into the instruction of mother. Otherwise, no. That means one who has got less intelligence, he gathers experience by seeing anything. So we must try to be more intelligent and gather experience by hearing, like the Shukdev Goswami or the our great acharyas used to do. The intelligent person hears from the law book, from the shastra, from the scriptures, that stealing is not good. He hears that thief is punished,
and when arrested, and he refrains from theft. He thinks in mind that, okay, I've heard that the consequences of stealing is not good, so I myself not going to steal anything. Let me not be arrested or punished for stealing by anything. By if our intelligence understands anything by hearing only, this is first class. If by seeing, then second class. And third, the most lowest class will be by experiencing, going through the whole experiential learning itself, by himself going through the whole experiential learning, then getting the any kind of lessons out of it. This is the third class of intelligence. So we should not behave like a foolish man who knows that he will be punished if still he commits theft and goes into the jail. A doctor can prescribe medicine to restore the body of a patient who has got a tendency of STD, of a bad sexual tendency. But medicine can help the body, but what about the tendency which remains inside the patient again? And he comes again and again with the same problem because and use the same prescription. We are trying to understand that you must have seen in your life that there are many students, you all are young age students. I think you all must be college going. So you must have seen that there are few students who again and again show up with the same tendency. They show up with the same tendency of doing the wrong thing again and again. Why does it happen? This is the point of understanding here, that even after going through, even after getting the medicine, like this patient, he got the medicine for the SPD or STD, but he understands that he is suffering. He will take the medicine, but again he comes up with the same disease to get the same prescription again. The reason behind this, the underlying reason, is his tendency to not prohibit himself into getting into that uh, disease again. Such kind of tendency, which is into deeply rooted in the heart of every one of us. हम सबके हार्ट में, आपके अपने भाई बहनों के, आपके फैमिली मेंबर्स के, या इवन आप किसी को न बताएं तो आपके खुद के मन में भी कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो कि आप मन में सोचते हैं, आपको पता है कि ये करेंगे तो फिर गड़बड़ ही होगा, कुछ ना कुछ गलत ही होगा, लेकिन टाइम आने पे या कुछ स्पेशल सिचुएशन या सरकमस्टेंस आने पे यू अगेन गो एंड डू दैट. ऐसा होता है आप लोगों के साथ? कभी कुछ ऐसा हुआ है? एनीबडी कैन आंसर, अनम्यूट देमसेल्फ एंड टेल मी. कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोग प्लान करते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है इसका तो कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं आया, लेकिन तब भी आप बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा कभी कुछ होता है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं. आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरी वन ऑफ यू. Yes, Mataji, you are audible. Quite a times it does happens that when Okay. Yeah, it happens in our day-to-day life also, that even if you are trying to lose, somebody is trying to lose weight, he decides कि अच्छा ठीक है, बस आज का बहुत हो गया, बस कल के बाद से कोई पिज्जा नहीं खाएगा, कोई शेक्स नहीं पिएगा, बस हो गया, एक महीने तक कुछ नहीं. लेकिन फिर कहीं पार्टी हो गई, कुछ लोगों का फैमिली गैदरिंग हो गया, अच्छा चलो आज खा लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा. या फिर कुछ भी आपने पढ़ाई का सोचा था, आज मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, लेकिन कोई फ्रेंड का कॉल आ गया, आप क्या करें, आधा घंटा बातचीत हो गया, आपने जो प्लान किया था, डिसिप्लिन बनाया था, वो टूट गया. तो ये जो हमारी लाइफ में चलता रहता है, किस वजह से होता है? व्हाई देयर इज नॉट अ स्ट्रिक्ट वन पॉइंटेड फोकस इन डूइंग दैट? दिस काइंड ऑफ प्रोपेंसिटी is equated with the elephant's bath. Elephant, what does it do? He goes to the river, he does a very nice, he takes a very nice bath. But as soon as it comes back onto the bank, it throws dust all over its body. So what is the value of its bathing? तो ये काइंड का जो प्रायश्चित होता है, ये परीक्षित महाराज जी ने इस टाइप का अटोनमेंट के लिए एकदम ही मना किया है. उन्होंने कहा कि तो ऐसा टाइप का प्रायश्चित करने से फायदा क्या, कि चोर को पता है कि वो जेल जाएगा तो भी वापस बाहर आता है, वहां पे और ज्यादा अपने माइंड को दूषित कर लेता है बाकी चोरों के साथ, तो और ज्यादा बड़ी चोरी करता है बाहर आके. तो ऐसे टाइप का अटोनमेंट या प्रायश्चित करने का मतलब कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है. तो उसके अर्जेस हैं, जो प्रोपेंसिटी है गलत काम करने की, वो खत्म नहीं हो पा रही है. तो सच्ची में प्रायश्चित कैसे होगा?
तो सच्ची का प्रायश्चित अगर हम पूछेंगे कि कैसे होगा, तो इसका एक ही तरीका है कि what we are doing, we are shifting ourselves from the one state of impurity to the other state of impurity. आप कहेंगे कि कुछ लोग आपको ये भी सिखाते हैं, बेटा अच्छा काम करो, बचपन से अच्छी हैबिट्स, गुड बिहेवियर, ये सब कुछ की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वो हर टाइप का गुड बिहेवियर होने के बावजूद भी कभी ना कभी वो गलत काम में पड़ ही जाता है। गलत काम सिर्फ गलत काम इन द सेंस नॉट रिलेटेड टू some kind of bodily engagement, but it is also related to mental engagement, even our day to day habitual engagements too. तो उसमें कैसे चला जाता है? तो इसका वजह यह है कि basically being an atman, we have got a uh, we are completely pure by nature. We remain completely pure by nature only when we situate ourselves in our natural state of purity. And how does it going to happen? How does it going to happen that we attain a state of such a purity of atma that we don't fall back again and again, we don't get dragged down again and again? How does it going to happen? Literally nowadays, now what we are going doing, we are changing ourselves from the impurity of passion, mode of passion and ignorance, and going to the another impurity of goodness. But then also that remains the impurity, and that's why we are dragged down. Whenever a kind of sense enjoyment or a situation of sense enjoyment appears to us, then we are again dragged down to the level of sinful activity. But somehow or the other, if we go through some kind of such a real atonement or real prayashit, that we awake ourselves to our real position of purity, of being an Atman, then then we will reach a level that we will never be able to fall back. And for this, Sri Prabhupada has recommended the most easiest yet most powerful process of following the path of devotional service. That is the awakening of our dormant Krishna consciousness. There is nothing that we are going to imbibe from outside. It is only in a dormant state. All we need to do is to bring the complete transformation of heart. All we need to do is revive our dormant Krishna consciousness. Overall, the whole thing is that when out of the material education, there is no real atonement is happening. But by changing, by working on the consciousness level, if we work on the change of consciousness, then the mind and senses also get controlled. Intelligence gets so much acutely developed that it is able to discriminate everything in relation to Krishna. And when it is able to do that, we get the determination to the proportionate of the service. The more and more we develop the service mood towards the Krishna, the more and more determination we also develop to discriminate anything which is right and wrong. And mind will also get the determination to accept what is favorable for the Krishna service and reject anything which is not favorable for the Krishna service. Our body also gets so and so determination that it accepts which is good in relation to the service of Krishna and rejects everything which is not good in relation to the service of Krishna. That is the performance of real atonement. This is possible only when we understand the importance of the association of pure devotee. Real atonement involves coming to the real knowledge, and for this there is a standard process. जैसे अगर उन्होंने कहा कि हम उनको ज्ञान देंगे, चोर चोरी कर रहा है तो नहीं करेगा, कैसे? उसको हमने जेल में डाला, पहला स्टेप जेल में डाल दिया, तो बाहर आके उसने फिर से चोरी की। तो दूसरा स्टेप क्या है कि हम उसको ज्ञान दें। तो ज्ञान देंगे कि देखो तुम चोरी करोगे तो मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तब भी चोरी कर रहा है। तो इसका मतलब कि ज्ञान भी उसके काम का नहीं आया, नॉलेज भी उसके किसी काम का नहीं। नॉलेज क्यों काम का नहीं? क्योंकि नॉलेज देने से उसका कॉन्शियसनेस तो प्योरीफाई नहीं हो रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस प्योरीफाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बात कर रहे हैं फाइनल अटोनमेंट की, रियल अटोनमेंट की, जिससे उसका एग्जिस्टेंस, उसकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो जाए।
तो वो होगा रियल नॉलेज। और फिर तब वो जो कृष्णा से कनेक्ट होकर हर चीज को करेगा, तो उसका BMW जो है, बॉडी माइंड स्पीच और बॉडी माइंड वर्ड, वो सब कृष्णा के कनेक्शन में जब प्योरिटी की ओर जाएंगे, तो दे विल नेवर बी अ चांस दैट ही विल फॉल बैक अगेन। There is a methodical process and life which has a human being is meant to follow certain kind of principles to revive his original knowledge, to revive his original consciousness of being a pure atma. आत्मा के प्योरिटी को रिवाइव करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको कि हमको फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो मैथोडिकल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं तपस्या। बाकी आम भाषा में इसको तपस्या बोलते हैं। लेकिन एक डिवोटी के लिए या डिवोशनल सर्विस में तपस्या क्या है? हमारे लिए तपस्या है जो हमको प्रिंसिपल्स बताए हैं डिवोशनल सर्विस में, उसको फॉलो करना ही तपस्या है। अगर प्रभुपाद जी ने मंगल आरती करने के लिए बोला है, तो सुबह उठना ही तपस्या है हमारे लिए। हमको हिमालय पे जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना। ये डिसाइड करना है कि मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। आई विल कंट्रोल माई अर्ज टू ईट ओनली बाय partaking कृष्ण प्रसाद। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ तपस्या आर वी सपोज टू डू। धीरे धीरे हम अपना जो स्टैंडर्ड है रियल नॉलेज का, जो रियलिटी या प्योरिटी का जो लेवल है, उसको वी कैन रेज बाय प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी एंड सेलिबेसी, बाय कंट्रोलिंग द माइंड, बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस। ओके, वन इज सेइंग दैट, जो कि अष्टांग योग में भी बताया जाता है कि तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन दमेन च। हमारे शम मतलब कि हमारे माइंड की चीजों को कंट्रोल करना, और दम मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना और दान करना। दान करने से, सत्य बोलने से, क्लीन शुचिता को मेंटेन करने से, योगासन करने से, ये सारा का सारा करने से एक एक ह्यूमन बॉडी वो जो है अपने कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे रेज करती है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि या तो आप ये सब करो, या तो सीधे दूसरा तरीका क्या है कि आप इतने ज्यादा आप फॉर्चुनेट हो जाओ कि आपको किसी प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिल जाए। अगर इफ यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, तो आपको ये वाले जो प्रोसेस थे एक एक करके, और पहले तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर अपने माइंड को शम करना, फिर कंट्रोल योर सेंसेस, फिर अपने जितनी भी पोजेशन है सब का सब चैरिटी में दे देना, कुछ अपने पास नहीं रखना। जैसे बाबा रामदेव का, he wears just only two clothes, one khadau. He has got so many companies, but he is not enjoying everything. वो खुद में अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने अपना सारा का सारा पोजेशन चैरिटी में दे रखा है, इसको कि आस्ते कर रखा है कि मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। देन सत्य ही बोलना, एकदम नीट एंड क्लीन रखना, योगासन प्रैक्टिस करना। आपको ये सब, ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि आपको कहीं से भी आपका भाग्य जग जाए और आपको एक प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिल जाए, तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं। यू विल सरपास ऑल द प्रैक्टिसेस फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ माइंड बाय द मिस्टिक योग प्रोसेस। जो मिस्टिक योगा प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस है वो सरपास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्योर डिवोटी है ये आपको अपने आप वो सारी की सारी क्वालिटीज दे देते हैं। कैसे? सिंपली बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या है? रिफ्रेनिंग फ्रॉम इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग। बस ये 4 काम करने हैं। एंड बाय एंगेजिंग इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सिंपल सा काम है। मतलब आपको कुछ योगासन आप नहीं करे, उसको ऐसा ना सोचेंगे कि मैं ये करूंगा तो फिर कैसे होगा, मेरे को कैसे एब्सोल्यूट कुछ मिलेगा, मैं कैसे अपने प्योर पोजीशन पे जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, और you have to engage in the service of Supreme Lord, but under the direction of the bona fide spiritual master। आप सिर्फ ये करिए, और बाकी सारे के सारे मिस्टिक योग के जो आउटकम्स हैं, जो सिद्धियां हैं, वो भी आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी, और आपको उसके लिए अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। और ये काम करना सबसे ज्यादा आसान है। श्री रूप गोस्वामी ने भी बताया है कि मैकेनिकल प्रोसेस से अगर हम किसी को रोके तो कोई असर नहीं आता, वो वापस जाके वही काम करता है। अगर नॉलेज देंगे तो नॉलेज से भी वो प्योरीफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि प्योरिफिकेटरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर किसी
प्योर डिवोटी की मर्सी मिल जाए और उसकी गाइडेंस मिल जाए, तो फिर हम सबसे हाईएस्ट स्टेज को पा सकते हैं। जैसा कि एक लेडी थी, उनके साथ हुआ था, जब उनको श्री हरिदास ठाकुर जी का एसोसिएशन मिला था, तो दैट प्रोस्टिट्यूट शी अचीव द हाईएस्ट एम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जस्ट बाय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कोई एक आपको प्योर डिवोटी मिल जाए तो उसके लव मात्र साधु संग से आपका सारा का सारा सिद्धि हो जाएगा, और शी अटेन द हाईएस्ट aim of life of Krishna consciousness. So such is the value of pure devotee. All we need to do is to remain in the association of pure devotee and try to get the dust of the lotus feet of great devotee and smear it in our whole body. By doing that, we will get the whole result of brahmacharya and everything, whatever we are doing, वानप्रस्थ, संन्यास, whatever penances, जो भी आदमी कर सकता है वो सब आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर डिवोटी का जस्ट पा लेने से। जस्ट पाना मतलब कि उनकी सेवा करना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेने से। ना मैंने बहुत कुछ बोली, आप लोग एकदम शांत हैं। Let's start that how we can. There are six type of urges that we saw, we learned, and they are the main reason of our for a living being to put him into a degraded situation of sinful activity. अगर वो urges हमारे अंदर ना हो तो हम कोई भी पाप पूर्ण क्रिया में नियोजित नहीं होंगे, हम कोई सिंफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वो अर्ज आता है इतना मन से, इतना कि किसी को आपने बुरे शब्द कहने का अर्ज आ गया, गुस्सा ही नहीं कंट्रोल हो रहा है, बोल ही दिया, मैंने सुना दिया। आपने देखा होगा अपने अगल बगल, कुछ लोग बोलते हैं कि बस मैंने सुना दिया तब जाके मेरा मन शांत हुआ है, ऐसा। मतलब वो अर्ज आ रहा है कि वो रोक ही नहीं पा रहा है, सोचे जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ओवर थिंकिंग का उनका हैबिट होता है, सोच रहे हैं तो सोचे ही जा रहे हैं, एक एक घंटा दो दो घंटा एक ही चीज पे जाके अटक जाते हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाए जा रहे हैं। तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह के सिंपल एक्टिविटी में पड़ जा रहा है। पर हम क्या करें, बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये अर्जित हमारे ऊपर एंगेज्ड, हम उसको अच्छे से एंगेज कर सके। वी डोंट फॉल बीइंग अ विक्टिम ऑफ दीज थ्री टाइप ऑफ अर्जेस। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, उपदेशामृत का अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन है, श्री भक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी ठाकुर जी ने बोला है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही a living entity falls into the trap of urge to speak, urge to demands of the body or the demands of the mind, तुरंत ही उसकी लाइफ इनऑस्पिशियस हो जाती है, अमंगलदायी। एक होता है मंगल ऑस्पिशियस, एक होता है अमंगल। लेकिन जैसे आप इस ट्रैप में आते हैं, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अमंगल होने ही लग जाएगा। कैसे? अब कैसे होगा? तपस्वी लोग क्या करते हैं? तपस्वी लोग इन अर्जिस को सहते हैं, और यही उनकी तपस्या होती है कि दैट दे आर एबल टू ओवरकम विक्टिमाइजेशन बाय द मटेरियल एनर्जी और द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जो तपस्वी लोग हैं, उनकी उनका तपस्या, आप कहते हैं ना वो तपस्वी हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। तो क्या तपस्या कर रहे हैं? उनकी तपस्या ही यही है कि वो अर्ज ऑफ स्पीच इसको कंट्रोल करते हैं, अर्ज ऑफ माइंड इसको कंट्रोल करते हैं, अर्ज ऑफ एंगर इसको भी कंट्रोल करते हैं। इनको कंट्रोल करना ही उनकी तपस्या है। और ऐसा करके वो क्या करते हैं? दे ओवरकम द विक्टिमाइजेशन बाय द मटेरियल एनर्जी। जो माया का जो प्रभाव है उससे वो बाहर आ जाते हैं। आई होप आप लोग इससे पहले अब तक ये मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका कॉन्सेप्ट वगैरह तो क्लियर है आप लोगों को ना? हरी बोल। माता जी, इफ Yes, लोग Maj. कैन रिस्पॉन्ड। हाँ, I hope, क्योंकि Yes, इस Maj, it's लेवल quite पे। clear. ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द अर्ज ऑफ स्पीच एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। It is said that we must control our speaking power. Every one of us has got the power of speech, and as soon as we get an opportunity, we begin to speak. But if we do not speak about Krishna consciousness, then whatever we speak, that is all sorts of nonsense only. There is no meaning in that kind of speech. Like, there are people around us, that is the talking of materialistic person. Many people who are not following Krishna consciousness, they all are materialistic.
Then some are the practitioners. They are impersonalist, Mayavadi philosophers. Their talking is compared to the croaking of frogs. जैसे बारिश के टाइम में मेढक अगर चर्र चर्र करता है तो वो अपने चर्र चर्र कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुन के सांप उसको ढूंढ लेता है और उसको खा जाता है। उसी तरह ये जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं जो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, मायावादी लोग जो बहुत कुछ फिलॉसफी दे रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर इनवाइटिंग डेथ एंड माया टू कैच देम बाय देयर स्पीकिंग नॉनसेंस। अब कोई कहे तो क्या हम बोलेंगे ही नहीं, या फिर हम चुप हो जाते हैं, चलो अब मैं चुप ही हो जाता हूँ, साइलेंस। दे इम्पोज सेल्फ इम्पोज्ड साइलेंस। तो क्या साइलेंस फायदेमंद है? नहीं। हम लगातार चुप भी नहीं रह सकते, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फेलियर फॉर अस। तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मीनिंग ऑफ कंट्रोल्ड स्पीच इज कन्वेड बाय श्री रूप गोस्वामी विच एडवोकेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ positive process of Krishna Katha और engaging the speaking process in glorifying the Lord Shri Krishna, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग अपने हियरिंग कैपेसिटी और स्पीकिंग कैपेसिटी का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैं सुबह से मैंने अभी दोपहर का मेरा एक लेक्चर था, मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी हमारा शाम का लेक्चर था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लेक्चर टू बी हैपन इन अ वेरी नाइस मैनर। तो हम लोग इसका वेट कर रहे थे। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, ये बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर कैपेसिटी टू स्पीक। तो हम कृष्ण कथा में, और या तो लॉर्ड कृष्णा को ग्लोरीफाई करने में, उनके चैंटिंग के थ्रू, उनके कीर्तन के थ्रू, इसमें हम लोगों को अपने बोलने का इस्तेमाल करना चाहिए। Yes, preacher of Krishna Katha is always beyond the clutches of death and Maya. This is the significance of controlling the urge to speak. जैसे श्री हरिदास ठाकुर, उनको भी बोलने की कैपेसिटी थी, but a devotee, he utilizes his capacity of tongue in glorifying the name, form, qualities and pastimes of the Lord. तो इस तरीके से वो फिर अमर भी हो जाता है और वो हमेशा के लिए ग्लोरियस हो जाता है, जो हमें करना है। We have to find out the ways in which we can divert and engage our capacity of tongue. जैसे मैं अभी कहीं सेमिनार देने जाती हूँ, बीच में अगर मेरा 1 घंटे का भी ब्रेक रहता है, मैं अभी गई थी ग्रेटर नोएडा में सेमिनार लेने, तो मेरा 1 घंटे का नहीं, 40 मिनट का ब्रेक था बीच में, सेकेंड राउंड के बीच में। 40 मिनट का टाइम मैंने देखा कैंपस में एक जगह उन्होंने टेम्पल भी बना रखा था, और मैंने ढूंढा, वहाँ पे तुलसी जी भी मिल गई मुझे। चीकू का पेड़ था वहाँ पे, सामने तुलसी जी थी, मंदिर था, दोपहर का ब्रेक था 40 मिनट का। मैं चाहती तो कहीं इधर उधर गपशप करती, जो बाकी लोग आए थे बातचीत करने, लेकिन मन नहीं करेगा आपको कुछ करने का कि उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करो। मैं चुपचाप निकली, मंदिर के बाहर सीढ़ी पे गई, हाथ पांव धोया, तुलसी जी को प्रणाम किया। 40 मिनट का टाइम था, मैंने राउंड किए, कैंटिंग किए वहां पे बैठ के, बहुत ही अच्छा लगा। 8 राउंड के लगभग किया होगा, 8 8 9 राउंड के लगभग किया करके फिर वापस आ गए। फिर अपना जो रेगुलर काम है, अपना सेमिनार था, उसको वापस कंडक्ट किया, कंडक्ट करके घर आ गए। लेकिन ये इस तरीके का कॉन्शियसनेस डेवलप करना पड़ेगा हमको कि हम कहाँ टाइम मिले और कहाँ तुरंत अपने टंग को राइट काम में एंगेज कर ले। यही जैसे हमें आदत है, जो डिवोटीज को आदत है कि हमें जहां पे भी मौका मिले हम अपने इस वैल्यूएबल लाइफ की वैल्यू को समझें, और समझते हुए कोशिश करें कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के टॉपिक्स को एंजॉय करें और अपने इस डेथलेस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा पा सकें। हमें इन मायावादी लोगों की तरह, कर्मकांडी लोगों की तरह, या फिर मटेरियलिस्टिक लोगों की तरह, उनके बातचीत की तरह बोलने का तरीका नहीं अपनाना है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि कुछ लोग होते हैं यूजलेस बुक्स लिखते हैं, यूजलेस, ये सिर्फ बोलने से रिलेटेड नहीं है, इवन लिखने से भी रिलेटेड है। आप ऐसा कुछ लिखते चले जाएंगे, कुछ लोग लिखना शुरू करते हैं, न मालूम कितने कितने रिसर्च पेपर लिख जाते हैं, वो सब बेकार है। हमें अपने इस टेंडेंसी को, वी हैव टू डाइवर्ट आवरसेल्फ टू द टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कृष्णा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। भागवतम में भी लिखा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की ग्लोरीज के बारे में अगर बातचीत करते हैं, तो जो ऐसे शब्द हैं जो कि भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसे शब्दों को अगर सुना जाए या लोगों के बीच वो एटमोस्फेयर में क्रिएट किया जाए, तो पूरा यूनिवर्स ही उससे सैंक्टिफाई हो जाता है। इवन जितने भी सेंटली पर्सन हैं, वो साक्षात एक तीर्थ स्थान के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर ही
भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करने की वजह से तीर्थ के समान हो चुका रहता है। ऐसा चर्चा हुआ था चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, हम देख सकते हैं, जिन्होंने मायावादियों के बीच में जाके जब प्रचार प्रसार किया, तो फिर वहां पे जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया तो पूरा माहौल प्योर हो जाता है, और कोई तरीका नहीं माहौल को प्योर करने का। Transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Misdirected civilization इसका साक्षात एग्जाम्पल हमने प्रभुपाद जी के लाइफ में देखा कि प्रभुपाद जी जब पहुंचे तो वहां पे हिप्पीज थे, मिसडायरेक्टेड लोग थे, पूरा सिविलाइजेशन नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन वहां पे प्रभुपाद जी ने ट्रांसीडेंटल वर्ड्स, मतलब भगवान का जो महामंत्र था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ट्रांसीडेंटल वर्ड्स हैं, ये कोई मटेरियल वर्ल्ड के आम शब्द नहीं है। दीज आर द ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशंस। ये जब फैलेगा एटमॉस्फेयर में, तो फिर इस वर्ल्ड के जितने भी इम्पायस लोग हैं या इम्पायस एक्टिविटीज हैं, वो अपने आप सही हो जाएंगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के लिए बोला है इस युग में। द कंक्लूजन इज दैट कि अगर हमको यूजलेस नॉनसेंसिकल टॉक से अपने आप को बचाना है, देन वी हैव टू टॉक अबाउट द डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये प्रभुपाद जी का कहना है। तो समराइज कर देते हैं कि अगर आपको जो अर्ज ऑफ स्पीच अगर आता है, अगर आप अननेसेसरली स्पीच करेंगे तो इट विल क्रिएट एनवी। या तो आप किसी की बुराई करेंगे, या तो निंदा करेंगे, या तो इधर यू विल गॉसिप, यू विल थ्रो यूजलेस प्रोपोगेंडा, और यू विल गेट डेवलप द टेंडेंसी टू टॉक बिहाइंड द पीपल्स बैक। भाई बोलना ही है तो आप अब क्या चर्चा करोगे? तो अच्छी बातें तो लोग कम ही करते हैं, निंदा ही करेंगे तो आप निंदा में पड़ोगे। तो बेटर है कि आप कृष्णा के प्लीज करने के लिए कुछ ना कुछ बोलो, या तो फिर अगर कोई समस्या है तो समस्या के सोल्यूशन के बारे में बोलो। क्योंकि सीधे उस अगर क्वेश्चन को ही बार बार बोलेंगे तो उससे फिर वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको बहुत डिस्कशन ही करना है तो कोई कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के बारे में बोलें। नाउ लेट्स कम टू द another kind of urge, that is urge of the mind। हमारा मन वेग, जो आजकल आप देखेंगे कि इंडिया में इतने ज्यादा, यहाँ पे नहीं था, विदेशों में तो पालतू कुत्तों की तरह लोगों ने साइकेट्रिस्ट रख लिए हैं कि हमारा एक डॉक्टर होता है, हमारे घर मेड होती है, उसी तरह हमारा एक साइकेट्रिस्ट भी है। क्यों? क्योंकि लोगों का दिमाग सही नहीं है। मनोवेग, रेस्टलेस ऑफ फिकलनेस ऑफ द माइंड। कितने लोगों के क्लास में जितने पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग बताएंगे कभी हैव यू एवर फेल्ट दिस फिकलनेस ऑफ द माइंड? आपने अपनी लाइफ में कभी महसूस किया है? बता सकते हैं? हरि बोल। आई होप आई एम कनेक्टेड नाउ। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। आ रही है, ओके, ठीक है। बिकॉज आई एम टॉकिंग कंटिन्यूअसली, सो लेट मी सी कि ऑल आर देयर विद मी। तो हमारे लाइफ में फिकलनेस ऑफ द माइंड होता है, हर सेकंड होता है। इवन सुबह सो के उठने का हम लोग अलार्म लगाते हैं, मन नहीं करता, सो जाते हैं। मन नहीं करता, मन नहीं करता, यही तो हम लोग बोलते हैं, क्या कर लो बेटा, ये काम कर लो। नहीं माँ, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। दैट इज ऑल द मनोवेग। माइंड को आपने एक बार कह दिया कि ये काम करना है, मतलब करना है, यही तो है, मन पे कंट्रोल करना ही तो मनोवेग से तो हम सब लोग जूझ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं। पर इसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि कृष्ण सूर्य सम, जहाँ कृष्ण है ना तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। माया मतलब वो सब चीजें, हमारे मन का जो वेग है, हमारे मन के जो डिमांड्स है, वो सब माया का ही एक रूप है, हमको खींच रहे हैं सेंस एंजॉयमेंट की ओर। लेकिन एक तरफ कृष्णा है जो कि साक्षात सूर्य के सम है। अगर कृष्ण है तो माया का अंधकार वहां पे बिल्कुल नहीं रह सकता। If Krishna is present in the mind, there is no possibility of mind being agitated by the Maya's influence। सिंपल सी लाइन है। अगर कृष्णा है आपकी लाइफ में तो वो सूर्य के समान है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका माइंड जो है माया के इन्फ्लुएंस से एजिटेट होगा। एजिटेशन समझते हैं? जैसे आपने कभी देखा होगा कि टीवी या कहीं पे देखा होगा, या घर में भी, वो बिजली के तार होते हैं, उसको आपस में टच कराओ तो
कड़कड़ाहट या चिन 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 करके चिंगारी आती है, उसका एजिटेशन बोलते हैं, मतलब कि आग लग रही है वहां पे। उसी टाइप के माइंड में जो एजिटेशन होगा वो सब कंट्रोल हो जाएगा अगर कृष्ण आपके साथ है तो। यौगिक प्रोसेस क्या बोलता है कि अब हम एक वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे, हम जितने भी मटेरियल थॉट है सबको खत्म कर देंगे, हम सबका निगेशन कर देंगे, हम हिमालय पे चले जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि ये भी अब आजकल के टाइम में इससे भी कोई फायदा होता नहीं है, हम वैक्यूम में नहीं रह सकते। तो बेस्ट ये है कि अगर हम हमेशा कृष्णा के बारे में सोचे कि हाउ टू सर्व कृष्णा बेस्ट, how to serve Krishna best. So this is going to be the best engagement for the mind to be naturally controlled. ये होता है, ये मैंने देखा है, हमारे अपने खुद के मेरे बच्चे हैं उनके लाइफ में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है, हमारे जितने भी लोग जिनको कि हम लोगों को टीचिंग करने का अपॉर्चुनिटी रहता है उनके लाइफ एक्सपीरियंस में भी देखा है कि अगर हम बस यही सोचते हैं दिन भर हाउ टू सर्व कृष्णा द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी या फिर जो भी हमारे पास है, तो हमारा माइंड अपने आप कंट्रोल्ड ही रहता है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का। सुबह सो के उठना है, अच्छा मंगल आरती करनी है, थाली तैयार करनी है, फूल कब आएगा, तुलसी जी कब आएंगी, सबका सब कृष्णा को कैसे सर्व करे, ये करने के उसमें ही ललक में ही माइंड भी अपने आप वो डवटेल हो जाता है। आपको अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती क्योंकि फिक्स है, सुबह आरती करनी है, फिर प्रसाद बनना है, तो प्रसाद में क्या बनना है। वैसे होता तो मन नहीं कर रहा तो किचन में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, कृष्णा को प्रसाद भोग लगाना है तो वो क्या खाएंगे, तो जो खाएंगे उसके हिसाब से हम बनाएंगे, और बनाएंगे तो हमको भी फिर अच्छा अच्छा प्रसाद मिल जाता है। नहीं तो जिनको प्रसाद बनाने का मन नहीं करता है, जो माइंड है मन नहीं करता, तो क्या करेंगे, वो मैगी खा के पड़े रह जाते हैं या कुछ नहीं खाते या बाहर का खाते हैं किसी के और के हाथ का। तो ये साइड से डेरोगेटरी सिचुएशन है, लेकिन कृष्णा की वजह से हम उस सब से बच जाते हैं। हम बहुत बढ़िया कुछ बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, और उसके बदले में हमको प्रसाद भी मिल जाता है, वो भी टाइम से। तो बेटर यही है कि वी शुड एंगेज आवर माइंड, देन इट विल बी कंट्रोल्ड। दो तरह का होता है, एक होता है अविरोध प्रीति। अविरोध प्रीति, प्रीति मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। माइंड हमको दो तरीकों से फ्लिकर कराता है। पहला तरीका है अविरोध प्रीति, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। आपको कोई चीज से अटैचमेंट होगा तो अनरेस्ट्रिक्टेड अविरोध, आप वहां पे कोई विरोध नहीं चाहते, होता ही चला जाएगा, होते ही चले जाएगा। और दूसरा होता है विरोध युक्त क्रोध, मतलब आप कुछ चाहते थे वो नहीं हुआ, तो आपका इट इज अराइजिंग आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन, एंगर अराइजिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि आपके मन का आप कुछ ने कुछ पूरा प्लान किया था वो नहीं हुआ। तो माइंड इन दो तरीकों से आपको खींचता है, या तो आपको परेशान करेगा कि वो काम करो, वो काम करो जो आपके अटैचमेंट का है, उसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, अविरोध प्रीति। या अगर किसी वजह से अगर रेस्ट्रिक्शन आ गया तो आपको गुस्सा दिलाएगा, देखा एंगर आ रहा है क्यों, क्योंकि आपके मन का काम नहीं हुआ। लोग यही तो कहते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है, मेरे मन का काम नहीं हुआ, बाकी सब तो है, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो आपकी लाइफ को बर्बाद करेंगे, समय को। ठीक है, ये तो सही है कि मटेरियलिस्टिक डिजायर से हमारी अविरोध प्रीति का मेन जरिया होती है। मॉल जाना है या कोई कपड़ा देख लिया वो खरीदना है, या कुछ कहीं खाने का रेस्टोरेंट का कोई ऑफर देख लिया, कहीं घूमने का प्लान देख लिया कि यहाँ पे घूमने जाना है, मतलब घूमने ही जाना है। माता जी 9:09 हो रहा है, और मुझे लगता नहीं कि आज के क्लास में ये पूरे हमारे सभी वेग कंप्लीट हो पाएंगे। अभी हम लोग मनसा वेग तक ही आए हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हमें कोई और क्लास भी मिल सके जिसमें हम ये सभी इसको कर सके, या अगर नहीं कर सकते तो मुझे अगर फिर 5 मिनट का टाइम देना होगा तो मैं इसको फिर समराइज करूंगी जल्दी। तो आप प्लीज मेरे को कंफर्म कर सकते हैं क्या? हाँ जी, अब आगे भी क्लास ले सकते हैं, बट आप अभी भी 5 मिनट समराइज करना चाहते तो हमारे पास time क्योंकि समराइज करने में वी हैव टॉक्ड अबाउट द अर्ज ऑफ स्पीच एंड अर्ज ऑफ माइंड, अभी हमारे 4 वेग और बाकी हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कि हमें समझना चाहिए बहुत डीपली, और डीपली के साथ साथ इसको लाइफ में भी अप्लाई करना है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, मुझे 10 मिनट का अगर समय देंगे तब तो मैं इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको लग रहा है कि सोना है, अभी लेट हो रहा है सुबह आरती के लिए, तो फिर मैं इसको यहीं पे फिर विश्राम करूंगी।
प्लीज बताएं माता जी। अगर like we obviously wish to understand it, and हम कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कर ले से 4 वेगों नेक्स्ट को क्लास, और नहीं समझते। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि तब हम लोग इस पर अच्छे से चर्चा भी कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि पहले श्लोक में ही ऐसा क्यों आ गया। पहले श्लोक में इसलिए भी आ गया क्योंकि हम बीइंग अ सीकर अपने गुरु के अंदर भी वो क्वालिटीज को देख सके कि ये जो 6 वेगों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, गोस्वामी की स्थिति पे आ गए हैं, तो वो पूरे दुनिया में सबको शिष्य बना पा रहे हैं, जैसे श्री प्रभुपाद जी, जैसे हमारे गुरु महाराज। और तभी वो गोस्वामी के पद पे आए हैं। और बीइंग अ सीकर हम भी समझ पाएंगे कि हमको भी कभी न कभी ये लेवल पे आना है, हमको भी इन सब अर्जिस को कंट्रोल करके इस सीकिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ये फर्स्ट नंबर पे श्लोक को दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर ग्रेस पवित्रा राधा माता जी से कि वो अगर कभी और एक आध क्लास और करेंगे तो हम लोग बाकी 4 वेगों के बारे में भी और उनको कैसे डवटेल करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो मैं माइंड पे कंट्रोल कर रही हूँ कि माइंड को हमको लगाना है भगवान की सेवा में। कैसे? पहला पॉजिटिव कॉन्टेम्पलेशन का तरीका ये है कि हम लोग भगवान के भागवतम भगवत गीता को पढ़ें और सुने। प्रभुपाद जी या फिर हमारे जो षडाचार्य हैं और भी जो ग्रेट सोल्स हैं, डिवोटीज हैं, उनकी लाइफ के बारे में कॉन्टेम्पलेट करें, सुने और उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करें, माइंड को भोजन दे, तो वो वही सोचेगा। और वो सोचेगा तो उनके मैसेजेस, उनके एसोसिएशन से हम भी उसको अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे। और लास्ट है कि जो हमने सुना है उस मैसेज को स्प्रेड करें। जब स्प्रेड करने के बारे में सोचते हैं, प्रचार के बारे में सोचते हैं, तो डबल स्पीड से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पूरे मैसेज को सही तरीके से डिलीवर करने की, तो ज्यादा डीपली उसको सोच पाते हैं। तो ये चारों तरीकों से हम अपने माइंड को फुल एंगेजमेंट दे सकते हैं और जो अर्ज ऑफ माइंड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेटर ऑन हमारे जो 4 एंगल, 4 बाकी अर्जित हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बीइंग अ वेरी गुड पार्टिसिपेंट्स एंड बीइंग अ गुड ऑडियंस, giving me an opportunity to deliver this lecture today and take the association of all of you. Uh, with this note, I would like to end this session today. एंड थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। विद इन 5 minutes वी कैन टेक अप द क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन था। जी। लाइक जैसे अभी हम एक बेसिक क्वेश्चन ही है कि जैसे हम इतनी फिलोसफी पढ़ लेते हैं, हम्म ऐसे all हम्म these urges and everything, तो इसे अप्लाई कैसे करें? लाइक अप्लाई करना, हाँ हमें पता है कि माइंड को, हाँ बट इस फिलोसफी को लिव कैसे करें? लिव दिस जी जी। अभी आप क्या कर रहे हैं माता जी? मतलब लाइफ में अभी किस स्टेज पर है और क्या कर रहे हैं? किस तरह का आई एम एंगेजमेंट है अभी इन आपका? कॉलेज फर्स्ट ईयर। हाँ, यू आर इन कॉलेज। ओके। इसको अप्लाई कैसे करें? इसको अप्लाई करने का बेस्ट तरीका है माता जी, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द आस्क फॉर द कृपा। The spiritual world, if you are somehow or the other interested in the spiritual practices, then we must always ask for the mercy, mercy from the great source. श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, जैसे प्रभुपाद जी, जैसे आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है, आपने नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना है, then we must ask for this special just of mercy कि आप हमको शक्ति दीजिए। जैसे कहते हैं ना, सकले सम्मान करीते शक्ति। बीइंग अ लिविंग सोल एंड लिविंग इन अ वेरी कंडीशनल सिचुएशन, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे रहते हुए हमको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है जहाँ पे कि हम ये इन सब ये जो फिलॉसफी है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, हमने अभी पढ़ा भी, आपने सुना भी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का हमको न सामर्थ्य है और न प्रॉपर माहौल मिलता है, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम उसको करें भी कि तो कैसे? इसके लिए हमको मर्सी चाहिए। श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति प्रभुपाद जी है, जो कि उनका मर्सी, भगवान की मर्सी का पर्सोनिफिकेशन है। तो जिस तरह से प्रभुपाद जी ने
विदेश में जाके उन लोगों का सोचिए ना, उनका तो कंप्लीट, वो तो उसी माहौल में ही मैरिनेटेड थे, कंप्लीटली मैरिनेटेड थे, तो भी उस फिलॉसफी को वो लोग जी पाए। और जीने के साथ साथ उसको उन्होंने प्रीचिंग भी किया, और प्रीचिंग करके अपनी लाइफ तो चेंज की ही, कि बाकी लोगों की भी कर पाए। So that means कि they got the power to do that, to bring that transformation in their own life. तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तो फर्स्ट, सबसे आसान तरीका जो है, we should pray for the mercy, we should ask for the mercy। आप सुबह पूजा करते हैं या जब भी भगवान का ध्यान करती हैं, जब भी चैंटिंग करती हैं, आप ध्यान करिए, आप नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करिए, तुलसी महारानी से प्रार्थना करिए, इवन कोई नहीं तो आप प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिए, ये प्रभुपाद जी, आई एम रीडिंग थ्रू योर बुक, मैं आपका इतना फिलोसफी पढ़ रही हूँ, मुझे मुझे पावर दीजिए कि मैं इसको अप्लाई कर सकूं अपनी लाइफ में। पहला सबसे आसान तरीका ये है, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाएगा। मैंने तो ये देखा, मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखा है कि आता है। दूसरा तरीका है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको डवटेल करने की कोशिश करिए। जैसे हमने अभी पढ़ा अर्जिज ऑफ स्पीच के बारे में, अर्जिज ऑफ माइंड के बारे में, तो हम उसको डवटेल करने की कोशिश करें कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो मैं चुप रह सकती हूँ, यहाँ पे तो बोलने की जरूरत नहीं है फालतू में, कहेंगे तो क्या बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ बातें करना बंद कर दें। वो हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है जिस तरीके के माहौल में हम पल बढ़े रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा डिवोटी एसोसिएशन बढ़ाना शुरू करेंगे, तो फिर हमको डिस्क्रिमिनेशन की पावर आ जाती है, अपने आप मन से आएगा कि अरे यहाँ पे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, जाने दो, हम चलो इधर ही कुछ कर दे। तो दो चीज आपको बढ़ानी पड़ेगी, एक तो यू हैव टू आस्क फॉर द मर्सी, प्रे। सेकंड, डिवोटी एसोसिएशन बढ़ाना होगा। आपके अगल बगल कोई टेम्पल है माता जी? हाँ, हाँ जी, I've been brought up in a devotee family, obviously. ओह ग्रेट, यू आर ब्रॉट अप इन अ डिवोटी फैमिली, तब तो बेस्ट ही बेस्ट है। फिर आपको चिंता की क्या जरूरत है, आपके तो अगल बगल डिवोटी ही डिवोटी हैं। ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपके अगल बगल आपकी फैमिली में ही डिवोटी हैं। तो आपको अब चिंता करने की क्या जरूरत है, आप जिससे चाहें जैसे चाहें आप भगवान के बारे में चर्चा कर सकती हैं, और दे विल नॉट रिस्ट्रिक्ट इट। वैसे तो आपको चूज करना पड़ता है कि ये मेरी फ्रेंड है, इसके मन की थोड़ी बातचीत करूं, ऐसा चूज करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो आप खुद ही डिवोटीज के बीच में ही रह रही हैं, सो नाइस। तो बेस्ट है कि आप डिवोटी एसोसिएशन में ज्यादा से ज्यादा रहें, क्योंकि वहाँ पे सभी डिवोटीज का एक माइंडसेट रहता है कि दे ऑल वांट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, दे ऑल वांट टू एंगेज देमसेल्फ इन कृष्णा, कृष्णाज एक्टिविटीज, और टॉक अबाउट द कृष्णाज सर्विस। तो वो आलतू फालतू चर्चाओं से वहीं पे कट शॉर्ट हो जाता है, तो आधा कट शॉर्ट तो वहां पे हो जाता है। सबसे और फिर फर्स्ट नंबर पे जो था प्रभुपाद जी की मर्सी के बारे में प्रे करना, वो जब मिलती है तो भी हमारा पूरा माइंड और स्पीच, माइंड भी सब कुछ उसी में लग जाता है, फिर हमारे पास टाइम नहीं बचना। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है, बहुत बार इस चीज को मैंने अप्लाई करके भी देखा है। वेन एवर आई प्रे, तो कृष्णा हमको इतने ढेर सारे एंगेजमेंट दे देते हैं कि उनकी तैयारी में ही पूरा दिमाग, बोलना सोचना सब उसमें लग जाता है। उसके बाद फिर टाइम ही नहीं बचता। लाइक मैं जैसे आपको अपना लाइफ का एग्जांपल बता रही थी कि मैं सेमिनार कंडक्ट करने गई, वहां पे अब सेमिनार नॉर्मल टॉपिक पे है, मटेरियलिस्टिक टॉपिक पे है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मुझे आता है, मैंने डिलीवर किया। लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था कि ओहो भगवान, ये 1 घंटे का टाइम बर्बाद हो गया, अब मैं किसी से कृष्ण चर्चा नहीं हुई, मेरे मन में ये आया। और बाई चांस वहां पे एक दूसरी प्रोफेसर थी, वो मिल गई, शी हैज जस्ट कम फ्रॉम वृंदावन, और मेरा वो तिलक देख के उन्होंने बोला आप एक कौन से हैं, मैंने कहा हाँ। और तुरंत ही हमने फिर श्री सनातन गोस्वामी जी के बारे में बैठ के पौना घंटा चर्चा किया था। तो आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को बोलने का, चर्चा करने का मौका मिल गया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इतना टाइम हमारा अच्छे काम में यूटिलाइज हो गया। मुझे चैंटिंग का मौका मिल गया, मुझे लगा अच्छा चलो इतना टाइम मेरा अच्छे काम में यूटिलाइज हो गया। तो वो जो अंदर से अर्ज थी वो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ भगवान, मेरा ये चॉइस था कि मैं भगवान के उसमें लगाऊं, तो मिल गई, उसका तुरंत ही प्लेटफॉर्म मिल गया। तो आप भी ऐसा प्रे करेंगे तो आपको भी मिलेगा। आई होप Yes, आई हैव आंसर्ड, आई एम एबल टू आंसर यू माता जी। yes, Mati, so good. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस माता जी? If anybody else has any other questions, please. Yeah,
I hope there are no other questions. Any other participant would like to ask anything? Bhavini Mataji, Gauri Mataji, there's Krishna Mataji. You all are coming from the good devotee family, I suppose. And we must pray to, and we must thank every day to Lord Krishna for giving us such a nice opportunity, such a nice association to revive our constitutional position of being a devotee and servant of Krishna. Let's pray. You all please pray for me so that I could revive my position of being a constitutional servant of Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. So, as a thank you message, Rajiv, I have put 2 points down. Like, whole lecture was wonderful. Actually wonderful. बहुत points clear. And इसमें थोड़ा relate भी कर पा रहे थे कि जो भी प्रभुपाद बुक्स में लिखा है वो सब कुछ है माजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे एग्जांपल्स दिए माजी and माजी told us first about the what are the 6 types of urges and then how we need to control them and then the best point was कि real atonement क्या होती है. Real atonement is actually coming to Krishna consciousness, awakening our dominant Krishna consciousness, our pure consciousness. Okay. And जब हम pure अपनी Krishna consciousness में आ जाते हैं तो we know कि there is no going back. So that is the real help. And thank you so much माजी आज का lecture देने के लिए. And I hope कि आप next lecture भी लगे हमारा और भी डिटेल में हमें समझाओगे और and so we will thank Maji by chanting Hare Krishna Mahamantra. लोग unmute कर सकते हैं आप. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much, Mataji. Thank you all of you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Maji, you are the host, you can enter. Hari Bol. Hare Krishna. Maji, you are the host, so you can enter. Okay. Yeah, I'll do that.